Hi guys, this is Rabia and you're listening to the Brown Girl Rants. Welcome back to the podcast. I hope there's at least like two new people listening to this podcast because I really want this podcast episode to reach and I want more people to listen to it. Not because I want more listeners, but because I think it could really help a lot of people in a lot of ways. And I'm really excited to talk about this topic because it's my favorite thing because I'm myself like that. But before talking about that topic, I would love to give you a quick update. So today I just came back from my friend's nikah, and it's like my childhood school friend, and we have been friends for like 19 years, and she got nikah today. Mashallah, I was so happy for her, obviously, and it was so fun. It was just the most like fun day ever, and I just want to say it here कि मज़ा आपको अपने दोस्तों की शादियों पे आता है ना, वो मज़ा आपको अपने relatives की शादी पे उस तरह नहीं आ सकता. So don't take your friends' wedding for granted. Also, no like offense to relatives' wedding. Obviously, that's also fun. You enjoy with your cousins वगैरह. लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है वो stress होता है, anxiety होती है, थोड़ा drama भी कभी कभी हो जाता है. तो ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती. Friends' wedding are more chill. It's more fun. So do not take your friend's wedding for granted. Enjoy it to the fullest, literally. But ये आज हुआ और मेरे सर में इस वक्त शदीद दर्द हो रही है, लेकिन I just wanted to record this podcast because today is Saturday and I it's like 10 p.m. right now. Why did I say 12? It's 10 p.m. right now और प्लान ये है कि मैंने अभी रिकॉर्ड करना है, एडिट करना है और मैंने पोस्ट भी अभी कर देना है because I don't want to wait for Sunday. और last week I asked you guys on Instagram to pick a day and vote for a day जिस दिन आप लोग podcast सुनना चाहेंगे, and you all picked, not you all but most of you guys picked Saturday. So that's what the day we are gonna release our new episode on. So Saturday is Brown Girl Rants Day और ये सब कहीं लिख लें और सबसे पहले तो मैं लिखूं और this is like the last time I'm uploading podcast this late on Saturday. लेकिन अगले हफ्ते से ये होगा कि you guys will wake up and the first notification you will see would be that Brown Girl Rants uploaded podcast, a new podcast episode, I promise. Hopefully. So I just really wanted to record this podcast और गर्मी ज़ोरों शोर से है और मैं पंखे में जब भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ तो वो अच्छी नहीं होती. और मैंने लास्ट टाइम भी आई एक्चुअली रिकॉर्डेड ट्वाइस क्योंकि पहले मैंने जो है वो फ़ैन में रिकॉर्ड की थी एंड द ऑडियो क्वालिटी वाज सो बैड एंड I am not a perfectionist. I don't think I am. But the audio quality was so bad that I have to re-record. I deleted that. और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कोई सॉफ्टवेयर पे AI फीचर खरीद के उससे अपनी सारी वो नॉइस कैंसलेशन वगैरह करती. It was just very bad. So I went in my storeroom and recorded the podcast in गर्मी, but it turned out better और मेरी वो पॉडकास्ट एपिसोड भी अच्छी थी. मैंने बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं दो बार री-रिकॉर्ड करती हूँ पॉडकास्ट और हमेशा जब मैं दूसरी बार रिकॉर्ड करती हूँ वो ज़्यादा बेहतर होती है. लेकिन होपफुली दिस इज़ गुड इन वन गो एज वेल बिकॉज आई डोंट हैव द एनर्जी टू स्पीक अगेन. बट welcome to the podcast. If you're new here, thank you for giving me a chance and I hope you stay till end. And yeah. So our topic for today is fangirling ruining your mental peace? So, if you know me since like childhood or if you know me for a while now, you would know that the fangirl in me can never leave. I cannot not be a fangirl. It's in me and मुझे समझ भी नहीं आती, लेकिन I just get obsessed with a show to that level I want to hype it, I want to talk about it publicly and I want people with whom I can talk about it. Or this happened to me first when I was like 14 years old and it's been like 10 years और मुझ में अभी भी वही आदत है. मुझे उस टाइम लगता था कि I'll grow up and I'll get over by it or this is a phase, but it did not. Obviously, I have fangirled different shows and I have fangirled different actors and different fictional characters. Like, and I still pretty much like, I know how a normal person watch a show and they watch it and they love it.
और वो इंस्टाग्राम पे शायद उन एक्टर्स को फॉलो कर लेते हो और वो उनकी रील्स देख लेते हो एंड दे आर डन विद इट. फॉर मी आई हैव टू बी on Twitter and talk about that show and just like scream about it and then think about it all the time. तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा obsessed हो जाती हूँ and it takes me a while to get over by a fictional piece and if I really really love it. So while that is fun, it sometimes takes a toll on you, especially if you like start standing the actor who played that character that you really liked, and we will talk about it in much details आगे जाके. So when I started loving, like मुझे याद है I was 14 years old, actually 13 years old, and I started loving this show and I got to know that Twitter is the place where everyone like talks about that show. So I joined Twitter और वो दिन था, आज का दिन है. Twitter is like a part of my personality now, or it's like I think my most used app. और पिछले महीने I watched this show that I really really loved. तो आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट एंड हाइपिंग इट ऑन ट्विटर. कुछ अर्से से मैं नहीं करी थी उस तरह. लाइक आई वुड वॉच अ कोरियन शो और अ जापनीज शो और आई वुड रीड समथिंग, आई विल टॉक अबाउट इट, लेकिन मेरे पास कोई इंसान नहीं था उसके बारे में वापस बात करने के लिए. लेकिन दिस टाइम फॉर दिस शो आई गॉट इन टू लाइक द होल फैंडम थिंग. आई मेड न्यू फ्रेंड्स, आई मेड न्यू म्यूचुअल्स. तो इस वजह से आई गॉट रियली इन टू पाकिस्तान स्टैंड ट्विटर क्योंकि वॉज अ पाकिस्तानी शो. तो और पाकिस्तानी, I can only talk about Pakistani, why am I fumbling? I can only talk about Pakistani stan Twitter because I am myself a Pakistani. तो मुझे लगता है कि वो कनेक्शन आप मतलब कि आप ज़्यादा बेहतर उस चीज़ पे कमेंट कर सकते हो ऑब्वियसली. तो बात ये है कि I would see people from like the people who are watching the show with me or the people from other actors और शो की पूरी फैंडम, and I would see them and I was like this is not healthy और it's not your fault और it is the like आप खुद ही पे अपने पे जुल्म करियो. इट्स नॉट लाइक कि मैं कहूँ कि ओ दिस इज़ मेंटल इलनेस, इट्स नॉट, लेकिन आप अपने साथ खुद ही जुल्म कर रहे हो. और मैं वो देखूँ और मैं कहूँ कि यार दिस इज़ नॉट फन, यू आर एक्चुअली नॉट एन्जॉइंग इट. आप जो है वो अपने आप को पागल कर रहे हो उस सब चीज़ों में. तो इस वजह से मैंने सोचा था कि आई विल मेक दिस एपिसोड बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू लाइक enjoy it and just live like a better life. So let's talk about first how we actually start fangirling, how we end up being a fangirl. So we either watch a fictional piece that we love so much we want to talk about it. As I said, in my case, we want to talk about it or we want to appreciate it more publicly. बेशक हम वो edits बना के करें या उसके बारे में analysis करें, मतलब हम उसको पूरा explain करें, whatever. Or even if you don't want to talk about it publicly, लेकिन if it's like something you keenly talk about or you think about or like it's like kind of consuming a part of your thoughts, तो फिर I think you turn into a fangirl, you get to a viewers a fangirl वाला status में. और फिर मुझे लगता है कि जिस तरह आप वो शो देखते हो तो then you want to know about the actors and then you want to know how they are in real life, then you follow them on Instagram and then you want to know their other projects. अब कभी कभी फैन गर्लिंग सिर्फ शो और उन फिक्शनल करेक्टर से लिमिटेड रहती है और कभी कभी वो आगे ट्रांसफ़र हो जाती है कि आपका जो फेवरेट करेक्टर था आप उस एक्टर को फॉलो करते हैं and then you want to see their more shows and then you want to talk about them and then at a point you reach at a point where you want to like hype them and you want to talk about every single thing they do and you want every single update of them and you want to kind of like dedicate an account to them जिसमें आप सिर्फ उन्हीं की बातें कर रहे हो और आप पब्लिकली जो है वो उनको वो एक हाइप दे रहे हो और आप उनको सपोर्ट दे रहे हो. देयर आर डिफरेंट लेवल्स. हर कोई फैन गर्ल फैन पेज नहीं बनाता और कुछ लाइक अपने पर्सनल अकाउंट पे भी दे कैन लाइक शो देयर इंटरेस्ट इन एन एक्टर और एन एक्ट्रेस or a fictional character or a fictional show. Or if it's like a pop star, so you listen to music and you're like, okay, I really like this song, so I want to know who made this song and then you want to watch their more content और आप उनके interviews देखते हो और आपको उनकी personality अच्छी लगती है तो आपको लगता है कि अब इनका आगे जो भी project जो भी चीज़ें करेंगे
I want to talk about it and I want to hype it. Like, I want to be someone who could like support this person, or मैं like, so it does take a part of you. आप मतलब कि you give a part of yourself to that person, even though like kind of like I don't know, ये शायद अच्छी explanation नहीं है, लेकिन आपका जो है वो ज़िंदगी में कुछ जो है वो टाइम उस इंसान के बारे में बात करते हुए गुजर जाते हैं, और ना यू लाइक गिव योर टाइम एंड एफर्ट टू दैट पर्सन. और हमने कभी इस चीज़ के बारे में इतना नहीं सोचा, क्योंकि इनिशियली ये होता है कि हमें वो चीज़ खुश कर रही होती है, तो इट्स अ थिंग दैट मेक्स अस सो हैप्पी दैट वी वांट टू टॉक अबाउट इट, एंड इट्स जस्ट गिविंग अस हैप्पीनेस. इवन लाइक योर फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस हु यू एडमायर सो मच, अगर वो इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट अपलोड कर दें, जस्ट मेक्स यू हैप्पी एंड एनी अपडेट मेक्स यू हैप्पी, तो हम जो है वो उस पर इतना खुश होते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि वो खुशी जो है वो कब हमारी ड्यूटी बन जाती है, कि हमें ऐसा लगता है कि नाउ वी हैव टू अपडेट पीपल कि उन्होंने क्या पोस्ट लगाई है, हमें इनके पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन करने पड़ेंगे, क्योंकि आई वॉन्ट टू सी दिस पर्सन स्टोरी एज सून एज ही और शी अपलोड्स इट. तो इस तरह हो जाता है. और फिर आपको उनकी हर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो कौन सा शो कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, राइटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, स्क्रिप्ट क्या है, और उनका एक्टिंग मार्जिन क्या है, उनका परफॉर्मेंस मार्जिन कितना है, एक्टिंग मार्जिन कह रही हूँ, उनका कैरेक्टर जो है वो पूरे शो में हाईलाइट हो रहा है कि नहीं, कोई और एक्टर उनको ओवरशैडो तो नहीं कर रहा. आप इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हो. और फिर आप जो है वो उनके सोशल जो उनकी लाइफ है उससे बहुत जो है वो उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करने लग जाते हो. यू वॉन्ट टू नो वेयर दे आर, वेयर देर फ्लाइंग टू, एंड ऑल ऑफ दिस. लाइक वी डोंट think about it, लेकिन and everyone have done that, I have done that, like I have been that fan. तो हमें रियलाइज़ अभी मतलब कि मैं जो बोल रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि दैट इज़ नॉट लाइक नॉर्मल, बट हमें उस टाइम नहीं समझ आती, क्योंकि अ पार्ट ऑफ अस इट्स जस्ट मेकिंग us happy and we have friends over there, और we interact to those people, और आपको उनसे बात करके मज़ा आता है. और ऑनलाइन फ्रेंड्स का ये है कि they don't really know you, so they can't judge you. Sometimes you end up telling your personal things to your online friends as well, which I don't think is a bad thing, क्योंकि they don't know you, they can't do anything about it, so they can't really judge you. आप जो अपने असल दोस्तों को नहीं चीज़ बता पाते, जिनसे आप रोज़ यूनिवर्सिटी में मिलते हो या जॉब में मिलते हो या कहीं भी मिलते हो, वो आप अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स को बता सकते हो, और वो आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं. यू कैन फाइंड मोर कम्फर्ट इन दोज पीपल बिकॉज दे आर स्ट्रेंजर्स, यू माइट नॉट इवन हैव सीन देम. तो फिर देर आप दोस्त बनाते हो तो ग्रुप चैट्स बनती है, फिर आप हर ग्रुप चैट्स में हर वक्त बात करते हो, आप छोटी छोटी चीज़ एनालाइज करते हो, और फिर आप हर शो उस एक्टर का देखते हो. आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप हर शो देखो, हर मूवी देखो, क्योंकि आप ट्रू फ़ैन तभी हो जब आप उस इंसान की बर्थ से लेकर उसने आज क्या खाया है और कितनी स्टोरी पोस्ट की और हर स्टोरी में क्या है आपको उसका पता हो, आपको उसके हर कैरेक्टर का नाम याद हो, आपको उसका हर डायलॉग में भी याद हो, और आप जब उस वोटिंग सीज़न आए तो आप दिन में रोज़ सो वोट करो, क्योंकि आपको लगता है कि आप पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एक्टर को सक्सेस देने में. मतलब आपको लगता है कि आपको ना फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ना वो फ़ैन गर्लिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि नहीं, आई नीड टू नो दिस इन्फॉर्मेशन. अगर इनका कंटेंट आया किसी एक्टर का, उसने कोई एडवर्टाइजमेंट किया है, कोई शूट किया, आई हैव टू मेक एन एडिट ऑन अ सॉन्ग, और मुझे ये सब कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, और आई हैव टू बी एन अनपेड PR ऑफ दैट पर्सन. और फिर जो है आप जब सुबह उठोगे, इट वुड बी द फर्स्ट थिंग यू विल सी ऑन योर फोन इन द मॉर्निंग कि उसने कोई स्टोरी तो नहीं अपलोड की जिसको मैं फ़ैन गर्ल कर रही हूँ. फिर आप हर रात के जब सोने लगोगे तो आप फ़ोन चेक करोगे, जब आप अपने क्लासेस के मिडल में होगे तब आप अपना फ़ोन चेक करोगे. एंड आई होप कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट यू रियलाइज़ कि दिस इज़ नॉट हेल्दी. सबसे पहले तो ये है कि किसी शो के बारे में फ़ैन गर्लिंग करना और किसी असल इंसान के बारे में फ़ैन गर्लिंग करना बहुत डिफरेंट है. जब एक शो आप देख रहे होते हो, फिक्शनल शो, वो फिक्शन रहता है, वो आपकी इमेजिनेशन में रहता है, और वो सारी चीज़ें इमेजिनरी होती हैं. उस शो और उस फिक्शनल कपल, अगर आपको रोमांस पसंद है किसी कपल का और आप जो है वो देख रहे हो एंड यू लव द लव स्टोरी, आप बेशक उसकी आगे उस फिक्शनल कपल की जितनी मर्जी फ़ैन फिक्शंस पढ़ लो,
वो फिक्शनली रहेगा और वो आपकी इमेजिनेशन में ही रहेगा, आप जितना मर्जी इमेजिन कर लो. लेकिन जब वो चीज़ ट्रांसफ़र होती है ना टू एक्टर्स, फिर आप देखते हो कि वो एक्टर एक्चुअली एक्सेसिबल भी है, इंस्टाग्राम पे है. आप देखते हो कि they are like in the same country, in the same city, or even in the same, like breathing the same air as you are, and you see people who meet them कि वो फैन से मिल भी रहे हैं, इंटरेक्ट भी कर रहे हैं. तो वो थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अब वो इंसान जो है वो असल इंसान है. तो आपको फिर आप डिसअपॉइंट होते हो जब वो असल इंसान उस मुताबिक नहीं चलता जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, क्योंकि वो फिर चीज़ आपके एक इमेजिनेशन से बाहर आ जाती है. फिक्शनल कैरेक्टर्स आर, वी कांट रीच देम एंड वी कांट लाइक एक्सेस देम लाइक दैट. तो हम जिस तरह उनको सोचना चाहिए हम सोच लेते हैं और इस वजह से दे आर नॉट हार्मफुल. लेकिन एक असल इंसान, आपको पता है, इट्स अ रियल पर्सन, इट्स एक्सेसिबल, यू कैन वेरी मच मीट देम समडे. तो आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है, ऑब्सेशन ज़्यादा हो जाती है, और फिर इट एंड अप बीइंग मोर हार्मफुल टू यू एज वेल. जैसे कि वी गेट लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड, और हम ये भी सोचने लग जाते हैं कि ओके मैं जिसको भी फॉलो कर रही हूँ, बेशक वो एक्टर हो या सिंगर हो, दे इफ़ दे आर पुटिंग आउट अ प्रोजेक्ट, और आपको इस चीज़ की बहुत फिक्र हो जाती है कि ये हिट है या ये फ्लॉप तो नहीं होगा, इसके व्यूज़ कितने आ रहे हैं, इसकी रेटिंग्स कितनी आ रही हैं, अगर उन्होंने म्यूज़िक नया डाला है तो वो स्पॉटिफाई पे ट्रेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा. और समटाइम्स यू नीड टू सिट बैक एंड रियलाइज के दिस इज़ नॉट योर हेडेक, दिस शुडंट बी योर हेडेक. मैं जैसे आई एम पोस्टिंग अ पॉडकास्ट, मैंने जैसे लास्ट वीक पॉडकास्ट पोस्ट की है, मैंने अभी तक देखा भी नहीं है कि उस पर एक्चुअली मुझे कितने लिसनर्स आए हैं, किसी ने सुना भी है कि नहीं सुना, क्योंकि आई एम ट्रूली डूइंग इट फॉर, क्योंकि मुझे इस चीज़ का शौक है. जिन एक्टर्स को आप का इतना सोच रहे हो कि मतलब इसको व्यूज़ पता नहीं मिले नहीं मिले, इसका ये शो हिट नहीं हुआ, या फिर इतने लोगों ने देखा, इट्स नॉट ट्रेंडिंग एनीवेयर, फिर भी वो लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक मतलब डूइंग गुड, डूइंग वेल एंड वर्किंग टूवर्ड्स इट, और उनको अपॉर्चुनिटी मिली है तो ही वो लोग वो सब कुछ कर रहे हैं. तो यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि आपका फिर किसी और फैंडम के साथ कंपटीशन चल रहा होता है कि इनका फेवरेट क्यों ट्रेंड कर रहा है, मेरा क्यों नहीं कर रहा है, या फिर वो आपके फेवरेट को बोलते हैं कि वो फ्लॉप, ये वो फला फला. तो लेकिन आप कभी मतलब कि रुको और सोचो कि यार मैं अपने प्रोफेशन पे क्यों नहीं ध्यान दे रही, या फिर जो मैं क्रिएटिव वर्क कर रही हूँ मुझे उसकी ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए. अगर मुझे अपने क्रिएटिव वर्क की फिक्र नहीं है तो वो इंसान तो बहुत बेहतर करे, क्योंकि ही इज़ एक्चुअली लाइक एट दैट पॉइंट वेयर आई एम लिटरली लाइक सपोर्टिंग दैट पर्सन. डू यू अंडरस्टैंड इट? तो वो मतलब कि उनके पास पैसा है, मोस्ट ऑफ देम के पास पैसा है, दे आर गेटिंग पेड, और दे हैव रीच टू दैट पॉइंट, क्योंकि अगर उनके इतने फैंस हैं इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो है उनमें, और कोई ना कोई सक्सेस किसी रेट की तो है. तो हम लोग अपने बारे में क्यों नहीं फिक्र कर रहे? तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को तो आपको छोड़ देना चाहिए. और जब आप ये चीज़ें सोचने लग जाते हो, इट लिटरली किल्स द फन ऑफ वॉचिंग एनी थिंग. मतलब कि जब आप ये सोच रहे हो कि वेदर इट्स डूइंग गुड इन नंबर्स और नॉट, इट विल ऑलवेज किल योर फन. और फिर जो है वो आप जब आप एक शो सिर्फ एक एक्टर के लिए देख रहे होते हो ना, तो आप उसका वो शो इन्जॉय नहीं कर सकते. इन्जॉयबल वही शो होता है जो आप विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन और विदाउट लाइक थिंकिंग टू मच आप देखना शुरू कर दो, और आप उसको एक्चुअली उसके कंटेंट के लिए देख रहे हो. आप इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि उसमें आपका फेवरेट एक्टर है. जब आप फेवरेट एक्टर के लिए देख रहे हो तो यू जस्ट वॉन्ट टू वॉच द शो टू नो, टू टेल पीपल और टू टेल योर सेल्फ कि मैंने अपने फेवरेट एक्टर का हर शो देखा हुआ है, इवन इफ यू डोंट एन्जॉय इट. Now, there's a branch of fangirling which is called shipping. और shipping का मतलब ये है कि you see two people and you want them to be in a romantic relationship. And if they are in a romantic relationship, you are obsessed with them. Like you want them to be together, and if they are together, so you really just enjoy it. You enjoy two people. मुझे शायद डिफाइन नहीं सही करना आ रहा, क्योंकि मैंने कोई डेफिनेशन सर्च की नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं तो एक्सपर्ट हूँ भाई. लाइक यू लाइक टू पीपल टुगेदर एट द पॉइंट के you start shipping them and you want them to be romantically involved, be in a romantic relationship with each other, or to get married to each other basically.
और ये मोस्टली तब होती है जब आपको दो ऑन स्क्रीन कपल इतना अच्छा लगे और दो फिक्शनल कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन इतने अच्छे लगे, उनका रोमांस आपको इतना अच्छा लगे कि फिर आप उन एक्टर्स को देखो। और आप, वही बात है ना कि जब आप कोई चीज़ ड्रामा में देख रहे हो या फिर फिक्शन में देख रहे हो, वो इमेजिनेशन है। उन दो कैरेक्टर्स के बारे में आप जितनी और मर्जी थेरीज बना लो और जितनी मर्जी उनके बारे में और स्टोरीज पढ़ लो, फैन फिक्शन जिसको कहते हैं, इट वॉन्ट डू एनीथिंग, क्योंकि वो इमेजिनेशन है और वो आप जितना मर्जी उनको सोच सोच के खुश हो। असल इंसान कैन नॉट बी टुगेदर जस्ट बिकॉज वो उस शो में साथ है। लेकिन जब आप उनको लोगों को असल में देखते हो तो फिर आपका दिल चाहता है कि because these people are the face of that fictional characters, so they need to be together as well, and I want to see them together. तो I understand it's very natural to think that way, लेकिन इस चीज़ में हदें पार हो जाती हैं because actors are actors। और मुझे मतलब लोगों को ये लगता है, और obviously I understand from what perspective people say कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी के साथ लाइक रोमांटिक सीन परफॉर्म कर रहे हो और यू आर नॉट इन लव विद देम, लाइक हाउ कैन यू डू इट सो ईजीली। एंड आई अंडरस्टैंड दैट, लाइक आई रियली अंडरस्टैंड दैट, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि विद एक्टर्स व्हेन दे डू इट विद एवरी सिंगल पर्सन it doesn't really matters. अब I would watch like a lot of Korean shows और उसमें I would see a lot of fan service. तो fan service ये होती है कि जब two actors know कि they are being shipped together, तो they जान के provide a lot of like off screen content जिसकी वजह से लोग और hype हो और like they just enjoy it, और वो फिर मतलब के फैंस को खुश करने के लिए जो है वो उस तरह कर लेते थे। नाउ कोरियन शोज दैट हैपन्स अ लॉट। तो मैं एक कोरियन शो देख रही थी और उसमें मुझे वो एक्टर और एक्ट्रेसेस बहुत पसंद थे, और फिर मैंने उनके ऑफ स्क्रीन इंटरव्यूज वगैरह देखे। मैंने कहा यार दे आर सो चिल, दे आर वाइबिंग एंड दे आर लाइक सो नाइस, आर दे इन लव विथ ईच अदर। फिर आई सॉ दोज एक्टर्स इन अदर शोज एज वेल। तो फिर मुझे पता चला कि दे डू दैट फॉर एवरी सिंगल शो। So that is like fan service. If a show, like if a couple is being loved so much or लोग are curious about their off-screen chemistry as well, so they'll start providing जान के content ऐसा to make fans like more engaged and happy. तो इसको कहते हैं fan service, और वो actors कर लेते हैं जब उनका जो है वो, और मतलब कि fans बेचारे सोचते हैं कि यार मतलब ये तो मतलब दे आर इन लव विद ईच अदर। अब कुछ एक्टर्स ऐसा नहीं करते, लेकिन बेसिकली हमारी ये थेरी है ना कि इफ़ दे आर डूइंग लाइक इंटेंस रोमांटिक सीन टुगेदर, तो हाउ दे आर नॉट इन लव विद ईच अदर। अब उनको ऐसी आदत पड़ गई है। आई डोंट हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस, लेकिन आई रिमेंबर व्हेन आई वाज होस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय यूनिवर्सिटी, तो आई वाज लाइक पेयर्ड अप विद दिस गाय, और उसमें हमें जो है वो हम होस्टिंग कर रहे थे। तो हमने बहुत सिंपल लाइक होस्टिंग की थी, और आई मेट दैट गाय फॉर द फर्स्ट टाइम, आई डिडंट इवन न्यू हिम। तो ना वो हमें ना बीच में दे वर आस्किंग अस के थोड़ा जो है ना आप लोग कुछ ऐड करें जिसमें आपका ना बैंटर पता लगे आप लोगों की, और दे जस्ट सेड यू गाइस हैव ग्रेट केमिस्ट्री, एंड आई लुक्ड एट देम और आई वांटेड टू प्यूक, नॉट बिकॉज आई हेटेड दैट गाय, बिकॉज आई डोंट वांटेड टू बी, मतलब मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बारे में ऐसे बात हो, और इट वाज सो रैंडम। और हमने बस अपनी अपनी होस्टिंग का पार्ट बोला और हम चले गए अपने अपने घर। तो मैं बताने का मकसद ये है कि इट्स नॉट लाइक, मतलब कि कभी कभी आपको वो, आई डोंट नो इफ़ आई कैन एक्सप्लेन इट वेल और नॉट, लेकिन बात ये है कि कभी कभी लोग आपको ऐसा कह रहे होते हैं, एंड अपेरेंटली टू पीपल कैन हैव केमिस्ट्री, लेकिन केमिस्ट्री और कंपैटिबिलिटी में बहुत फ़र्क है। और केमिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है इन रियल लाइफ, लेकिन कंपैटिबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह नहीं होता कि बस लोग कहें कि यार ये दोनों बहुत अच्छे हैं और बस इनको शादी कर लेनी चाहिए, तो वो बस वो कर लेंगे शादी। और कभी कभी जो मतलब कि जैसे मैं चिढ़ गई थी उस सेंटेंस से, तो लोग कभी कभी चिढ़ भी जाते हैं जब आप उनको ज़्यादा, मतलब कि एक्टर्स मैंने देखा है कि वो चिढ़ जाते हैं, देन दे स्टार्ट अवॉइडिंग ईच अदर, और उनकी फिर मतलब कि दे एक्चुअली स्टार्ट हेटिंग ईच अदर। मैंने इतने एक्टर्स देखे हैं हु वर लाइक गुड, नॉट लाइक फ्रेंड्स, लेकिन गुड प्रोफेशनल्स, लेकिन उनको इतना शिप किया फैंस ने कि दे वुड नॉट इवन इंटरेक्ट विद ईच अदर, क्योंकि उनको चिढ़ चढ़ गई थी कि भाई नहीं है कुछ ऐसा, तुम लोग क्यों फजूल में शिप कर रहे हो। तो आई अंडरस्टैंड हाउ इट कुड गेट अनोइंग। कुछ एक्टर्स फैन सर्विस भी करते हैं, एंड दैट इज़ लाइक मिसलीडिंग, और फैंस कुछ अर्से लिए खुश होते हैं और फिर वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन बेसिकली शिपिंग पीपल इन रियल लाइफ
is a weird thing. Now whoever is listening to me and is like, Rabia, you yourself were a shipper at one point. Guys, I shipped a married couple, and the moment they got divorced, I stopped talking about them. Or yes, it was heartbreaking, matlab, so I shipped. तो अच्छा, मेरी बात, now let's talk about myself. I don't ship, क्या मैं बोल रही हूँ, I don't ship two actors or two people openly, ठीक है. I would like to see two people and be like, oh my god, they're so cute. लेकिन I don't do it openly unless, और मैं तो जो है वो ship भी नहीं करती दो लोगों को unless कि they are actually together. Like, this is my rule in shipping कि if two actors या two like people are actually together और आपको नज़र आ रहा है कि they are together, even if they are secretive about it, उनको कुछ मतलब कि जो भी है, अगर they are actually together तो I'll ship them. और मैंने हमेशा जितने भी जब भी ship किया है openly तो मैंने तभी किया है जब मुझे actually पता हो. मैंने ship तब भी किया था when I was 14 years old. तो I did ship दो एक्टर्स जो जिनका कुछ भी नहीं था साथ, ठीक है, लेकिन कुछ था ही नहीं. और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होता, मतलब बेवकूफ़ ना बनो. तो आई एम टेलिंग यू गाइज फ्रॉम लाइक माई ओन एक्सपीरियंस लिटरली. तो इस वजह से देन when I was like in my peak fangirling era, तो I was actually like, it was actually for a couple, celebrity couple. लेकिन I only started liking them when they were like married or engaged to each other, और फिर they got divorced and it was really heartbreaking and I moved on very like, मतलब you move on, it's okay. मतलब अच्छा, अब इसका ये भी है, मैं अब देखती हूँ ना उनके बारे में एडिट्स और जो हैं वो लोग रो रहे हैं और मैं कहती हूँ भाई, you guys were not, it was not your relationship, you cannot like, आप सो मेरे लिए थोड़ा सा मैं कहती हूँ दिस इज़ मेंटल इलनेस, क्योंकि रिलेशनशिप किसी और का है, जिसका है वो शायद मूव ऑन भी कर जाए, लेकिन आप मूव ऑन ना करने देना. और आप खुद मत कि यार आप अपने सफरिंग्स के बारे में क्या बात कर रहे हो यार, हाउ आर यू सेइंग कि आई हैवंट मूव्ड ऑन. भाई, इट वाज नॉट योर रिलेशनशिप, you were not in it, you were just admiring it from the back, and it's not that hard to not talk about it, even if you haven't moved on or you still think about it at nights, which is weird. It's very easy to not talk about it, क्योंकि for me, I just मतलब कि even if I really fangirl about something for a moment, मैं उसके बाद I just stop talking about it. Even if I think about it, कुछ अर्से बाद I get over by it. तो अब आके मेरी fangirling is like very healthy and I'll tell you guys कि how I did that. लेकिन खैर, फिर जो है वो एक्टर का डिजिटल फुटप्रिंट वो भी बहुत मैटर करता है. फिर वो कैंसिल हो जाता है तो आपको फिर उस चीज़ का भी होता है, मतलब कि यार मैं तो जिसको पसंद करती थी, इट कुड बी एन इन्फ्लुएंसर एज वेल, वो कैंसिल हो गया एंड इट लिटरली स्ट्रेसेस यू आउट. देन आपको फिर आप बैठ के उस एक्टर या एक्ट्रेस को सपोर्ट कर रहे होते हो जबकि आपका नहीं बनता. मतलब कि एक इंसान ने अगर कोई शिटी काम किया है तो वाई इज़ इट मेकिंग यू एंग्शियस, एंड आपकी क्यों नींदें उड़ी हुई हैं उस चीज़ की वजह से. आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हो. जब कोई एक्टर स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाए, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हो. यू थिंक दैट एक्टर और एक्ट्रेस ओव्स यू दिस. Yes, obviously fans are the people who like make someone और आपको वो appreciation एक एक्टर की देते हैं. Like however, वो एक्टर हैं और उनका काम है एक्ट करना, किसी शो में काम करना. दे डू नॉट ओव यू टू पोस्ट कि वो इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर्स हर हफ्ते पोस्ट करेंगे, ईद पे पोस्ट करेंगे. दे डोंट ओव यू टू प्रोवाइड कंटेंट अपनी को एक्ट्रेस के साथ या को एक्टर के साथ. दे डोंट ओव यू टू राइट लाइक अ नोट और समथिंग व्हेन दे विन एन अवार्ड कि इन्होंने मुझे अभी तक थैंक यू नहीं बोला, दे वॉन एन अवार्ड, वाई हैवंट दे थैंक देयर फैंस येट. तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने देखे हैं फैंस एंड इट मतलब कि इट मेक्स मी मैड कि वाई आर यू आस्किंग सो मच फ्रॉम द पर्सन हु ओव्स यू नथिंग, लिटरली नथिंग. दे डोंट इवन ओव के आपको कि दे डू अनदर शो, दे मतलब कि यू इट्स योर चॉइस कि you want to make a fan account of that person. They didn't ask you for it and you are not doing them any favor. मतलब like you are, but they didn't ask you to do it. Like you are doing it because you love that person so much. तो आप कैसे तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको हर
सेकेंड बात थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना. लाइक इट्स नाइस इफ दे डू इट, लेकिन इफ दे don't acknowledge their fans, so I don't think that's mad, because that they're just doing their job, मतलब, और वो है acting. I don't know, I hope that makes sense. और फिर it starts making you anxious, और फिर it affects your mental peace. और आप जब fan wars में पढ़ते हो तो फिर मतलब आपकी धज्जियाँ उड़ जाती है ना. इट रियली मेक्स यू एंक्शियस जब आप फैन वॉर में चले जाते हो और कोई आपके एक्टर को ये बोल रहा है और ये चीज़ें बोल रहा है और आप सोच रहे हो कि मैं कैसे डिफेंड करूं, और फिर आप जो है इट जस्ट लाइक messes up with you. And then the thing that once made you so happy, जो आपके लिए एक escape था रियलिटी से, वही चीज़ आपको दुखी कर देती है. इट मेक्स यू सैड, इट मेक्स यू एंक्शियस, और यू जस्ट रीच टू दैट पॉइंट कि इट स्टार्ट्स मेंटली इफेक्टिंग यू. लाइक आपका दिमाग उस चीज़ में खर्च हो जाता है, एंड यू कैन एक्चुअली फील दैट योर ब्रेन हर्ट्स. Now, if someone listened to all of that, or they're like, yes, all of this is happening to me, but I don't know how to get out of it, and I don't want to get out of it, because I can't really just like switch off my phone or deactivate my Twitter or deactivate my Instagram. Like, I still want to enjoy that actor or the show or whatever. So I have a solution for you. I think at this point I still fangirl, but I only enjoy the fangirling. I don't really go in the stress stuff. मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल हो रहा था. और मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी हेल्दी फैन गर्लिंग, वेरी एंजॉइंग इट, इट्स मेकिंग यू हैप्पी, बट आपने अपने सर पे नहीं उस चीज़ को चढ़ाया हुआ, एंड यू आर ऑल्सो लाइक डूइंग योर रियल लाइफ स्टफ, तो आप इतनी मेहनत नहीं कर रहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, the first thing you should do is detach, and that is to restrict yourself. अब आपने आपको restrict कैसे करना है? ये नहीं है कि बस मोबाइल साइड पर रख देना है, उस एक्टर को ब्लॉक कर देना है. restrict आपने ऐसे करना है कि आपने अपने आप को बताना है कि मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं जो हूँ वो हर चीज़ मुझे पता हो, ठीक है, या फिर मुझे हर शो का पता हो, मुझे हर इन्फॉर्मेशन हो. इट्स ओके टू नॉट नो एवरी सिंगल थिंग अबाउट समवन एंड स्टिल like them, and still be a well wisher of them, and still be a fan of them. It's okay. You can be a fan of an actor from even watching one show of them, and I said it, I don't care कि बाकी के नहीं, ऐसा नहीं होता. ऐसा हो सकता है, आप किसी एक शो को देख के एक एक्टर के फ़ैन हो सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप उसके बाद 10,000 उस एक्टर के और शो देखो. आप जिसको आई एम अ फैन ऑफ दैट एक्टर फ्रॉम दैट वन शो, आई रियली लव देम फ्रॉम वन शो. तो start missing out on things, especially the things that do not interest you, especially the things जो आपकी असल ज़िंदगी में जो है वो रुकावट ला रही हैं. You don't have to skip something, skip a meetup, skip a wedding maybe, skip a class to not miss something that your favorite actor or singer or what personality is providing you. ठीक है, miss out on things. आप जो है वो अपने आप को दुनिया में मसरूफ़ करें, आपकी क्लासेस अपने आप को पढ़ाइयों में मसरूफ़ करें, जॉब है जॉब में मसरूफ़ करें. जब आपके पास ये सब चीज़ें होंगी तो फिर आपके पास वैसे ही टाइम नहीं होगा कि आप मोबाइल खोल के फ़ौरन देखो कि अब क्या अपडेट है, अब क्या हो रहा है, अब क्या चीज़ें हो रही हैं. तो स्टार्ट मिसिंग आउट ऑन थिंग्स. इट्स ओके अगर आप एक दिन टाइम पे एक चीज़ नहीं देख सकते. देयर शुडंट, लाइक ऑब्वियसली आई नो देयर इज़ एन अर्ज कि वो मुझे टाइम पे देखना है, सबके साथ देखना है, मुझे उसके बारे में बात करनी है, ये वो, लेकिन ट्राई मिसिंग आउट ऑन थिंग्स. थोड़ी देर बाद देखें ताकि यू कुड टेल योर सेल्फ कि इट्स ओके, मैंने बाद में देखा, इट वॉज स्टिल इन्जॉयबल फॉर मी. तो थोड़ा सा जो है वो अपनी वो इतना हर चीज़ में एक मिनट में एक चीज़ देखना अपने लिए कम करें, और स्टार्ट मिसिंग आउट ऑन थिंग्स, स्पेशली द थिंग्स दैट डू नॉट इवन ट्रस्ट यू, दैट डू नॉट एक्साइट यू. फिर उसके बाद वॉच कंटेंट ऑफ अदर पीपल. और मुझे लगता है कि for me personally this is very like this really changed when I started watching other show, especially when I started watching K-dramas. अब K-drama में पता है मैं क्या करती हूँ, I watch a show, I love it, समटाइम्स आई रियली लाइक द एक्टर और मैं उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेती हूँ, लेकिन आई डोंट देन जंप टू अनदर शो ऑफ द सेम एक्टर, क्योंकि मैं
अब कोरियन ड्रामा देख रही हूँ, तो फॉर मी आई वॉन्ट दैट ड्रामा टू स्टे फिक्शन. मुझे नहीं जानना कि असल में क्या हो रहा है, असल में वो एक्टर कैसा है, उसका क्या है क्या नहीं है. वो मेरे लिए एक फिक्शनल स्टोरी थी, ये फिक्शनल कपल था. आई लव द रोमांस. नाउ आई वॉन्ट टू वॉच अनदर स्टोरी विद डिफरेंट एक्टर्स. तो आई स्पेसिफिकली वॉच फिर देन अदर शो जिसमें एक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट हो, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ सिर्फ फिक्शन के लिए. और मज़े की बात ये है कि बीइंग अ फैन गर्ल ऑफ एन एक्टर एक्ट्रेस या जो भी पर्सनैलिटी माइट बी फन, लेकिन जब आप फिक्शनल लवर होंगे ना, इन्जॉयमेंट उसी में है. फिक्शन इज़ अ थिंग दैट इज़ एन एस्केप फ्रॉम एन रियलिटी एंड इट्स इन्जॉयबल. फिक्शन देख के जो जब आप सिर्फ फिक्शन की तरफ होंगे ना, उसमें आपको वो मज़ा भी आ रहा है, एस्केप भी मिल रहा है आपको, जो है वो अगर मतलब कि इफ़ यू आर ह्यूज फैन ऑफ रोमांस, इफ़ यू लव रीडिंग रोमांस, आपको वो सब कुछ भी मिल रहा है विदाउट जस्ट लाइक मेंटली चैलेंजिंग योर सेल्फ के. क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो तो फिर उस एक्टर से जुड़ जाती है ना, कि व्यू क्यों नहीं आ रहा है, इस चीज़ पे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, ये हिट नहीं है, या फिर ये एक्टर है इसका इतना परफॉर्मेंस मार्जिन नहीं है. व्हेन यू आर प्योरली वॉचिंग अ फिक्शन पीस, तो फिर आप फिक्शन की जब आप कोई फिक्शन की फ़ैन गर्लिंग करते हो ना, उस पर में आप बात करना चाहते हो, तो दैट इज़ एक्चुअली मोर इन्जॉयबल. एंड दिस इज़ अ थिंग दैट आई लर्नड कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फिक्शन देखना है, मुझे उस चीज़ को इन्जॉय करना है. मुझे नहीं जानना कि एक्टर की पर्सन ज़िंदगी में क्या हो रहा है. लेकिन आई एम अ फ़ैन ऑफ एन एक्टर, और दिस इज़ द ओनली एक्टर आई विल नेम, क्योंकि मैं खुद फ़ैन हूँ. तो आई विल गिव एन एग्जाम्पल. आई लव सजल अली. लाइक आई एम इन लव विद दैट वुमेन. और वो भी इसलिए क्योंकि आई रियली love the work she does, or I am always very excited for her shows. And it took me a while to realize that actually I am always like looking forward to her shows. And I remember कि उन्होंने एक दो ऐसे करेक्टर्स उनके किए थे जिसमें top of the list is मोमिना सुल्तान. I remember watching that character and relating to it so much. और उसके बाद उनके एक दो शो भी साथ लगे हुए थे, and I love those shows as well. कि I realized कि I really look forward to this woman's like future shows, and that's why it makes me her fan. अब एक टाइम था कि मैं उनकी बहुत like obsessed fan थी, और मैं हर चीज़ मुझे अपडेट होती थी, मुझे हर चीज़ के बारे में बात करनी है. But now I still love her and I still like know what show she's doing or what's her upcoming projects, but I watch it very neutrally. Like if I like it, I might talk about it. मैं कैजुअली भी देख लूँगी. मुझे नहीं ज़रूरत कि मैं हर सीन के बारे में बात करूँ या फिर हर किसी को पता हो कि मैं वो शो देख रही हूँ. तो आई स्टिल प्रीटी मच इन्जॉय हर, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट लाइक दैट इंटरेस्टेड टू नो कि वट एवरीवन एल्स हैव टू से अबाउट हर. तो आप हेल्दी फ़ैन गर्लिंग भी एक एक्टर ही कर सकते हो. और इट ऑल्सो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू लिटरली वॉच एवरी थिंग शी डज़. तो अगर उनका कोई मतलब कि कोई और चीज़ आ रही है, कोई और कंटेंट आ रहा है, आई माइट नॉट कंज्यूम इट. आई वांट टू बी इंटेंशनल विद व्हाट आई वॉच. और ये जब आप फिक्शन की फ़ैन मतलब कि फ़िक्शन के फ़ैन होगे ना, फिक्शन को इन्जॉय करोगे, देन यू विल ऑल्सो बी इंटेंशनल विद व्हाट यू वॉच, एंड यू विल रियलाइज़ कि दिस इज़ नॉट द जॉनरा आई रियली एन्जॉय. बेशक इसमें मेरा फेवरेट एक्टर है, आई वॉन्ट वॉच इट. मुझे जैसे पर्सनली लव ट्रायंगल्स नहीं पसंद, तो मैं जो भी जिसमें जो मर्जी एक्टर है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं नहीं देखूंगी लव ट्रायंगल. मुझे नहीं देखना. दिस इज़ नॉट समथिंग आई एन्जॉय. सो टू गेट आउट ऑफ द ऑब्सेसिव फैन गर्लिंग थिंग्स, एक तो मिस आउट ऑन अ फ्यू स्टफ फ्रॉम द एक्टर्स. फिर उसके बाद वॉच मोर कंटेंट अदर रीजन्स का, अदर लाइक इंडस्ट्रीज़ का, और वॉच फॉर फिक्शन इन्जॉय करना शुरू करें. फिर उसके बाद बिजी योर सेल्फ विद लाइफ. बाहर जाएँ, दोस्तों में घूमें. कभी कभी हम फैन गर्लिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें रियलिटी से एक स्केप चाहिए होता है, और जब वो फिर आप व्हेन इट स्टार्ट्स टेकिंग अ टोल ऑन यू, यू नीड टू गो बैक टू द रियलिटी. और रियलिटी में मेक इट लाइक एन एस्केप फॉर योर सेल्फ, और एस्केप ज़्यादा मतलब कि डेडिकेट एन आवर और टू फॉर इट. इस वजह से फिक्शनल कंटेंट इज़ लाइक द परफेक्ट एस्केप, क्योंकि यू कैन एक्चुअली लाइक मैनेज कि अच्छा मुझे एक दिन में एक एपिसोड देखनी है, मुझे 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं. वो उस तरह आप नहीं कर सकते. इवन इफ़ यू बिंज रीड और बिंज वॉच, वो 1-2 दिनों में चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. लेकिन जब आप एक असल इंसान को फ़ैन गर्ल कर रहे होंगे ना, तो वो तो कभी ख़त्म नहीं होना, वो तो चलता रहेगा साथ साथ. अगर कुछ नई बात होगी फिर भी कोई ना कोई बात निकल आएगी बोलने के लिए. फिर उसके बाद रीड बुक्स, मतलब कि शायद मीडियम अपना चेंज करने की कोशिश करें. जैसे बुक्स इज़ प्योरली फिक्शन, उसके पीछे तो मतलब कोई है ही नहीं ना, मतलब राइटर है और उस राइटर का और कंटेंट है. तो वो जो और कंटेंट, अगर आपको वो राइटर इतना भी पसंद है, जो और कंटेंट लिखेगी, इट वुड बी डिफरेंट.
और कुछ बुक्स की सीरीज़ भी होती हैं, तो बट इट्स स्टिल नॉट एज बैड एज लाइक वॉचिंग अ शो एंड देन बीइंग ऑब्सेस्ड विद इट, क्योंकि उसमें आप विजुअली वो चीज़ें देख रहे हो और बुक में सारी इमेजिनेशन पे वो चीज़ें चलती हैं. जब इमेजिनेशन तक चीज़ें रहती हैं तो आई थिंक सही है, क्योंकि आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो असल लोग नहीं हैं, आप क्या ही कर लोगे उसका. फिर उसके बाद हेल्दी फैन गर्लिंग में अगेन बी इंटेंशनल विद वॉट यू वॉच. इवन इफ आई एम अ फैन ऑफ सजल, इफ शी डज समथिंग दैट आई डोंट वांट टू वॉच, आई डोंट थिंक कि ओ आई हैव टू वॉच इन ऑर्डर टू प्रूव माई सेल्फ के ओ माई गॉड आई एम अ फैन ऑफ हर. आई डू enjoy her work and I enjoy following her on Instagram, yeah, if she posts something, like, at the same time I'm not bothered about it. I'm not bothered ke what she have posted and if she have posted or not. I'm not bothered ke kya chal raha hai, unka koi interview nahi aaya, ye nahi aaya. तो now at a point of fangirling I'm not bothered ke मैंने बहुत बार बॉदर्ड बोल दिया. आई होप यू गेट इट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज के नो वट यू लाइक एंड डिसलाइक, स्पेशली विद फिक्शनल पीसेस. अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद, मुझे बहुत से जॉनर्स हैं जो मुझे नहीं पसंद और मैं वो नहीं देखती. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे वक्त के साथ साथ जो है वो पता लगी कि ओके दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ माई कप ऑफ टी, मैं नहीं देखती. आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट. और जो है मुझे हर चीज़ देखने की नई ज़रूरत कुछ प्रूफ करने के लिए. फिर उसके बाद जो है like stop spreading hate on other people, other actors, actresses, other people who fangirl जो भी है, unless कि it's very problematic और उन्होंने वाकई कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से सोसाइटी पे जो है वो, if someone does a problematic show and you think it's damaging the society, then you can call them out. लेकिन just calling an actor or actress out क्योंकि it's a competition of your favorite is like stupidity, it's mental illness, don't do that, it's like the worst thing ever, or like get a life. So you can still enjoy fangirling. Like, I was watching this show and I was really obsessed with it. Like, I was a little bit unhealthy obsessed with it. The moment show ended, I kind of like start doing other things, or I'm not that obsessed with it now. Like, I don't talk about it that much, I don't think about it that much. और ऐसा ही होना चाहिए. मैं कुछ लोगों को देखती हूँ, they're still like emotionally attached to the show. They watched like 2-3 years ago and that is nice कि आपके पास एक comfort show है जिसको आप देखते रहते हो, लेकिन don't like be miserable about it. तो basically do fangirling, but it should be a source of happiness for you. Don't be miserable. Don't let yourself be miserable, and if you think you are getting miserable in that, then get out of it. और सबसे बेहतरीन मेरे पास इसका यही आई थिंक पॉइंट है कि फ़िक्शन की फ़ैन गर्ल करें, फ़िक्शन को एंजॉय करें. और क्योंकि फ़िक्शन जो है ना उसकी कोई लिमिट होती है, वो पूरा नहीं ज़िंदगी चलता रहता, इसकी कोई लिमिट नहीं है. और फिर ये भी जानना ज़रूरी है कि ना आप जिसकी फ़ैन गर्लिंग करते हो ना आप उसको कुछ ओव करते हो. यू डोंट ओव कि आप उनको अप्रिशिएट भी करो. यू कैन लाइक वॉच समथिंग एंड लाइक एडमायर देम, लेकिन इफ़ यू आर अप्रिशिएटिंग देम देन you are just like doing it because you really liked it. You don't owe it to them. They don't owe to thank you for your appreciation. And they don't owe you to provide you this content. They don't owe you anything and you don't owe them anything. मतलब कि इस तरह नहीं चलता. It's a very complicated like relationship. तो इसको पैरा सोशल बनाने की ज़रूरत नहीं है. पैरा सोशल रिलेशन मतलब कि it's bad. तो इस वजह से fictional pieces are the thing that you need to enjoy and love. Or if you are following an actor and if you are admiring an actor, तो जस्ट नो कि मुझे किस लिमिट तक करना है और मुझे इस चीज़ में मिजरेबल नहीं होना. और क्योंकि जब आप बाहर से वो सब चीज़ें किसी और को देखते हो कोई ना, आप सोचो कि बंदा पागल है, ये क्यों ऐसा कर रहा है. तो इस वजह से अपने थोड़ा सा लाइक स्टेप बैक and look at what you're doing and then see your screen time and tell yourself कि there are so many things in life that I want to do. मैं खुद मतलब कि I want to see कि मेरे अंदर क्या स्पेशलिटी है, मैं मेरा क्रिएटिव दिमाग किस चीज़ों में चलता है. And listen to more Proud Girl episodes. Like, I have a lot to say and a lot of ideas that could like personally grow you. तो अगर आपने किसी को सपोर्ट ही करना है तो मुझे कर लें.
लाइक फॉर रियल। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मुझे है कि आई रियली जस्ट डोंट टॉक अबाउट लाइक फिक्शन। आई एक्चुअली डोंट रियली टॉक अबाउट फिक्शन। आई टॉक अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है उस चीज़ में, क्योंकि मैं खुद फ़ैन गर्ल रह चुकी हूँ। बहुत से मैंने लोग देखे हैं जिनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, वो रह चुके हैं या फिर हैं, एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू डू बेटर एंड नॉट बी मिजरेबल। आई होप this episode helped you. I hope like you liked this episode, related to it. Follow me on Instagram, it's @thebrownGirlRants. And अगर आप मेरी ज़्यादा ये वाली साइड देखना चाहते हो, if you want to see my fangirl side, तो you can follow me Ravia @RaviaSMS on like Twitter. Or yeah, I'll tell you the shows I am watching or want to watch. I want to start watching When Life Gives You Tangerines. और इसकी भी बहुत फ़नी स्टोरी है। आई वॉज वेटिंग फॉर दैट शो फॉर अ ईयर, लेकिन जब वो शो आया तो रमज़ान था। मैंने कहा अच्छा बाद में देखूंगी, और अभी तक मैंने वो शो नहीं देखा। क्या हो गया मुझे, मतलब क्या हो गया? मे बी अगर मैं उसी टाइम देख लेती या मैं अपने आप पे इस चीज़ पे कर लेती कि नहीं मुझे अभी देखना है, तो मे बी इट वुड हैव बिन वियर्ड। लाइक मैं ज़्यादा उस चीज़ में अंदर चली जाती, और अब मैंने वो नहीं देखा तो आई एम लाइक ओके, इट्स ओके, लाइक आई एम स्टिल लाइक फाइन, like I want to watch it. And then there's this book जो कि मैंने आधी पढ़ लिया, The Secret History by Donna Tartt. I really want to finish it because it's a good book. And मैंने बहुत प्लॉट ट्विस्ट पे जो है वो रोकी थी कि अब मैं इसको बाद में पढ़ूंगी, तो खैर I want to continue it. Not plot twist, it was like I forgot that word. What's that word? Anyways, whatever that word it, तो मैंने उस प्लॉट ट्विस्ट से पहले एज पे बहुत, मतलब कि आई स्टॉप्ड रीडिंग इट। आई डोंट नो, आई विल गेट, मतलब कि मैं अब उस लूप होल में चली जाऊंगी और मुझे वो वर्ड नहीं मिलना, लेकिन देयर इज़ अ वर्ड फॉर इट। तो या आई रियली लव फिक्शन। आई वॉन्ट टू रीड मोर बुक्स। इतना लाइक देयर इज़ जस्ट सो मेनी गुड शोज, देयर आर सो मेनी बुक्स दैट आई वॉन्ट टू रीड, और दे आर वेरी इम्पैक्टफुल। और मैं ब्रेन रॉट वगैरह के ना अब अगले एपिसोड में करूँगी, क्योंकि बहुत सा कॉन्टेंट अब ब्रेन रॉट भी है, तो सो आई विल टॉक अबाउट इट someday else. If you liked this episode, so let me know, give me your reviews, let me know how I can improve. I'll see you guys next week, next Saturday, hopefully in the morning, with a new episode. Bye, take care.